Hello 10th class students, how are you all? What are you looking at? These kids enjoying at home with their pets, and they are enjoying even while studying with their dolls and toys. They never part with them. Yes, and boys, they like to play with football, their favorite toys, pets. It happens in our young age that we love our pets, toys, and our belongings so much that we are emotionally attached with. Once I lost my mobile phone. That mobile phone was having beautiful images that I miss. कि मेरे पास वो होती तो कितना अच्छा होता. वो memories होती हैं हमारी. तो I miss those pics. Those which are not retrievable now. And last year what happened? I lost my pet Buzo, my dog. He died. So we miss what we lost, which was our favorite. Yeah, and I still can't understand, I still don't know how to put up with these two losses. They are lost forever. Those two things are not retrievable. Have you ever lost something you liked very much? Let us know. What was that? या अभी आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप खोना नहीं चाहते, जो आपको बहुत बहुत प्यारी है? बताइए मुझे. ठीक है. You saw, when we lost something, it is shock for us. But as the time passes, we realize that this is part of life. ये आना जाना चीज़ों का लगा रहता है. That loss is common. We come to know after some time. So we realize that it is futile to grieve on losing something. Rather, we should think further. This is what we can say epistemology of loss we are going to discuss today. Topic, I am coming. Why I am talking like this? Because it is materialistic possessions which is the topic. आपकी poem by John Berryman. जॉन बेरीमन की तो द बॉल पोम है. सर कह रहे हैं मैटेरियलिस्टिक पोजेशंस. अरे ये बॉल पोम जो नाम है ना, ये एक मेटाफर है. बॉल हियर रेफर टू नॉट मेयर एनी सिंपल बॉल. बॉल इज materialistic things, our possessions. If the boy had lost his ball, how is he feeling? What we feel when we lost our materialistic things. This title itself evokes deeper meaning: to face a sudden loss and how to reconcile. This is the message that poet conveys with a simple story of a ball. Ball poem. Yeah, symbolism is there. Symbol of possessions a person may have. Also, it is symbol of childhood innocence of that boy. Through that boy, poet wants to say what is a loss and how to bear it. What that boy has to learn from the experience of losing something. He was playing with his ball. The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. या अभी उसने बॉल को थ्रो किया और वो हार्बर पर वाटर बॉडी में एक चली गई. द बॉय लॉस्ट दैट बॉल. द बॉल हैज रोल्ड अवे इनटू द वाटर. द बॉय इज मिजरेबल, ग्रीफ स्टिकन, ही इज हेल्पलेस. वो सोच रहा है, वो उदास है. यहाँ पर देखो बॉय लगाया उसने, जो बॉल पोएम के थ्रू उसने मैसेज कन्वे करना चाहा एक बॉय के माध्यम से. लर्न एट अर्ली स्टेज, हेंस बॉय इज यूज्ड हियर बाय द पोइट, नॉट एनी मैन और एनी वुमन. यस, वॉज टेकन हियर एज ए बॉय. कि स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स मेच्योरिटी. यहाँ से शुरू करना है. बॉय से हम बॉल को लॉस करवाते हैं. क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल लॉस हो गई. इफ नॉट
कंसोल्ड, अगर यहाँ पर उसकी बॉल गुम हो गई है और उसे कोई कंसोल नहीं करता है तो ही गेट्स ट्रेनिंग इन लर्निंग हाउ टू पुट अप विद ए लॉस। कि हमेशा स्टेप अप, ऊंचे ही ऊंचे नहीं भैया, अगर कभी असफलता भी मिल गई तो क्या लटक जाना है क्या फैन से? नहीं ना, यही तो हो रहा है आजकल। क्या सिखाया जाता है? कामयाबी कामयाबी, सक्सेस सक्सेस। ये नहीं बताया जाता कि कभी ना भी अगर अचीव कर पाए तो क्या। बच्चों को ये नहीं पता आजकल। तो लॉस को बियर करना, इंसिडेंट इज स्मॉल, कि बॉल चली गई, बॉल लॉस हो गई बच्चे से, बट विद अ सिग्निफिकेंट लेसन दैट वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ टू फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। सो हाउ टू बियर लॉस, how to get reconciled to the fact of losing the possessions one is fondly attached। जिन चीज़ों से हम पूरी तरह अटैच्ड हैं, अगर वो हम लॉस करते हैं तो हम कैसे उसको बियर करें। तो यहाँ पर चाइल्ड को प्रिपेयर किया जा रहा है। पोइट वॉज देयर when he saw the ball was rolling down into the water, but he does not convincing him that he can get another ball। ये ले पैसे ले, दूसरी ले लियो। as money is external, उसने यहाँ पर ये भी बताया, जब हम पोम को एक्सप्लेन करेंगे आपको बताएंगे, it cannot buy everything, money cannot buy everything children, it can replace that ball, it can replace that materialistic thing but cannot bring it back। यादें जुड़ी होती हैं हमारी उसके साथ, वी आर अटैच्ड होते हैं इमोशनली उससे। यही थीम है, दैट लॉस इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो सीखना है ना हमें, लाइफ में सिर्फ प्राप्त करना ही नहीं है ना, खोना भी तो है। तो कुछ खो जाए, हमारा प्यारा नियर एंड डियर वन, हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें, हमारे रिलेटिव, हमारा फ्रेंड, क्लासमेट, थिंग्स विल कम टू अस, we will lose them। it should not be an emotional setback for anyone। it's not end of life if one is not there now with us, if something is lost। learn how to put up with a loss without losing heart and hope। let yourself go ahead courageously, leaving the loss behind children। this is the message of poet John Berryman through this poem, beautiful poem, 18 line, The Ball Poem। Is there anything you cannot afford to lose it? Let us know। क्या है आपको जान से भी प्यारा, बहुत प्यारा कोई चीज़, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, तो लिख दीजिए उसके बारे में। ये है द बॉल पोएम वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। व्हाट इज हैपनिंग हियर? अ बॉय लूजेस ए बॉल, ही इज वेरी अपसेट। देखिए आप इंट्रोडक्शन में, अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। फिर वो बॉय इतना अपसेट क्यों है, क्या है ऐसा? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स दैट हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। पोएम रेसिटेशन पे आता हूं मैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई वीडियोज, दोज विल बी रिलीज्ड इन नियर फ्यूचर। लाइक वी हैव वेबसाइट ऑल्सो फॉर यू, यू कैन राइट माई न्यू क्लासरूम .herokuapp.com। it will take you to my own website where you can get printed material as well to study। earlier we were just posting you links of videos from YouTube। now we are going one step further by giving you printed study material that you can study, you can go for self study, where you will be having everything ready to read, MCQs, comprehension, summary in Hindi and English, line by line full explanation, और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट जो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबल्स हैं। तो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई वेबसाइट, आप जा सकते हैं। यहाँ पर हम जा रहे हैं द बॉल पोएम के मॉडल रेसिटेशन के लिए। क्या कहता है देखिए आप, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go
merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. कहाँ चली गई? All his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. Great. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what everyone must one day know and most know many days how to stand up. Great, beautiful. चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में ही पोएटिक डिवाइस भी करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं जॉन बेरीमन ने यूज़ की हैं टू ऑर्नामेंट हिज पोम। ब्यूटीफुल पोम। पहली लाइन देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब वो क्या करे? यहाँ पर देखिए पोइट क्वेश्चन रेज करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए जब उसकी बॉल गुम गई। वट फिर से देखिए आप, पहली और दूसरी लाइन का स्टार्ट वट से हो रहा है, देखिए आप एनाफोरा, और दूसरी लाइन में 2 बार वट आ गया, रेपिटिशन। वर्ड को नंबर ऑफ टाइम यूज हो रहा है। सेकंड लाइन में देखिए वट रेपिटिशन आ गया। लिटरेरी डिवाइसेस भी साथ के साथ कर लेते हैं। और वट पहली लाइन का स्टार्ट और दूसरी लाइन का भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एनाफोरा। रिपीट्स द सेम बिगिनिंग टू एम्फेसाइज अ रिपीटेड एलिमेंट। व्हाट इज द बॉय नाउ? व्हाट इज ही टू डू? अब वो क्या करे जब उसकी बॉल गुम गई है? कौन सी बॉल? आई सा इट गो, जो मैंने देखी जाते हुए। रोलिंग डाउन इनटू द, क्या कहता है? मैरली बाउंसिंग। देखिए आप, मैरली बाउंस कौन करता है? बच्चे करते हैं अमूमन तो। और वो बॉल के लिए कह रहा है मैरली बाउंसिंग। आप मॉर्निंग में देखिए बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं, मैरली बाउंसिंग। और यहाँ पर बच्चा तो नहीं हो रहा है, बच्चा तो सैड है, कंट्रास्ट भी आ रहा है यहाँ पर। और मैरली बाउंसिंग क्या है? बॉल है, बच्चा सैड है, कंट्रास्ट भी आ रहा है यहाँ पर। डाउन द स्ट्रीट, पर्सनिफिकेशन भी आ रहा है यहाँ पर। मैरली बाउंसिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो दिया गया है बॉल को दे दिया गया है। वैसे तो बच्चे कूदते फुदकते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉल जा रही है। चाइल्ड इज बाउंसिंग मैरली, नॉट हियर बट बॉल। या और कहां पर? मैरली ओवर देयर। कहां है बॉल इस वक्त? इट इज इन द वाटर। कंट्रास्ट आ गया, पर्सनिफिकेशन आ गया पहले में, पहली और दूसरी लाइन में रेपिटिशन और एनाफोरा आ गया। देख पा रहे हैं आप? चलिए 5th लाइन में राइम स्कीम कोई नहीं है, फ्री वर्स में लिखा गया है। ए बी बी, नथिंग इज देयर। ठीक है, या भी देखिए आप, ये सारी बातें करनी है। दूसरे स्टेंजे में आ जाइए, क्या कहता है इस पर? जब वो देखता है बॉल चली गई, बच्चे को देखता है, अब वो कहता है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अरे बच्चे, मैं उसे कंसोल करने नहीं जा रहा हूं। पोइट कहता है आई एम नॉट गोइंग टू कंसोल दैट बॉय। ये कहने की ओ चिंता मत कर, और ले दूंगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। वो बॉय फिक्स हो गया है ग्रीफ में, सैड में, ग्लूमी है अब वो। अब यहां पर देखिए शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। बॉय है शेक्ड, तो शेकिंग ग्रीफ नहीं है। यहां पर क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है। वेयर एडजेक्टिव इज यूज्ड नॉट विद नाउन इट क्वालिफाइज बट विद सम अदर नाउन। बॉय के साथ नहीं लगाया शेकिंग, ग्रीफ के साथ लगाया है। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट आ रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो खड़ा है, जड़ होके रह गया है वो। ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, देख रहा है कहीं दिख जाए मुझे, कोई लाकर दे दे। ऑल हिज यंग डेज, और क्या देख रहा है वो? उसकी पुराने दिनों की यादें जुड़ी हैं उस बॉल के साथ। इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। 9th लाइन देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन। क्या कहता है वो? मैं इंट्रूड नहीं करूंगा। जो उसकी मनोस्थिति है इस वक्त, मेंटल जो हालत है उसकी, मैं इंट्रूड नहीं करूंगा।
मैं चाहूँगा कि उसे बाहर आना है इससे, अपने आप इस ट्रॉमा से, इस नॉस्टैल्जिक जो हो रहा है वो बॉल को लेकर। नो, आई विल नॉट इंट्रूड, ही विल लर्न दिस लेसन हाउ टू पुट अप दैट लॉस ऑफ दैट बॉल। बॉल तो बॉल है, वो हम आदमियों के लिए मैसेज है कि हमें कैसे मटेरियलिस्टिक जो हमारी थिंग्स हैं वो लॉस हो जाएं, तो हमें कैसे बाहर आना है उससे। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर बॉय के माध्यम से समझाना चाहे कि बॉल गुमी है, इंसानों से, हमसे, हम बड़ों से भी कई बार कोई चीज़ें लॉस हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और ये कहने नहीं जाऊंगा ये डाइम, ये लो 10 सेंट ले लो आप, भाई और ले लेना बच्चे, रो मत, अनदर बॉल मिल जाएगी, हैं, इज वर्थलेस है ये कहना, ये नहीं कहना है। बच्चे को यही मौका देना है कि संभल भैया, ठीक है। ये क्या लॉस है बॉल का। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10th लाइन देखिए आप। इस वक्त यहां पर उसे पहली बार, शायद ये उसका पहला लॉस है। ये लेसन देना है हमें, अपने बच्चों को भी देना है। उन्हें गमले का फूल मत बनाइए, जंगल का फूल बनाइए। यस, सब कुछ सिखाइए उनको। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने दो उसे कि लॉस क्या होता है, कि जो हमारी प्यारी चीज़ है कोई, जिससे हम इतने अटैच्ड है इमोशनली, अगर वो लॉस हो जाती है, इफ़ दैट थिंग इज़ लॉस्ट, वो पहली बार सेंस कर रहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स। देखिए आप कि जो एक दौड़ लगी हुई है, पीपल विल टेक बॉल्स, कि आपकी बॉल लोग छीन लेंगे। पीपल विल टेक बॉल्स हैं, या लोगों के पास गेंदें आती रहेंगी जाती रहेंगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट। देखिए आप, बॉल्स बी, एलिट्रेशन आ रहा है बार बार, देखिए ब्लू किया है मैंने, ब साउंड आ रही है बार बार, ठीक है। और बॉल्स में रेपिटेशन फिर से आ रहा है, तो ये लिटरेरी डिवाइसेस हो गई इसकी भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। वो कहता है कि ये छोटे बच्चे, इस तरह तो होता रहेगा, फिर से चीज़ें आएंगी जाएंगी, लॉस्ट भी होती रहेंगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, उसमें पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। रिप्लेस वो कर सकता है, मनी जो है उस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, दूसरी आ जाएगी। लेकिन जो वो बॉल गुम गई, जो हमारी उससे अटैचमेंट जुड़ी थी, जो छोटे बच्चे होते हैं अपनी बिलोंगिंग को, अपने टॉयज़ को, अपने पेट्स को हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपनी डॉल्स को, गर्ल्स, इवन स्टडी करते हुए भी, तो उसका तो कोई अनमोल है, वो तो प्राइसलेस थिंग्स हैं उनके लिए। चाहे हमारे वो छोटे छोटे स्लीपर हों, चाहे हमारा पुराना मोबाइल फ़ोन ही हो, 5 साल मैंने एक यूज़ किया, आज भी संभाल के रखा हुआ है। कि 20 साल की मेरी गाड़ी है, मैं उसको बड़ा अभी भी प्यार करता हूँ, 2003 मॉडल है, देखिए आप। तो मनी कांट बाई एवरीथिंग, ये मैसेज देना चाहता है। ये वो ही इज लर्निंग, 15th लाइन देखिए, लास्ट स्टैंजा में चलते हैं। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, क्या लेसन ले रहा है वो समझना चाह रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, कि लॉस क्या है, हाउ टू बियर करना है, हाउ टू स्टैंड अप व्हेन समथिंग इज लॉस्ट विच वॉज वी वर emotionally attached with, knowing what every man must one day know। हर आदमी को ये सीखना है, ये बच्चा भी सीख रहा है, हर किसी ने ये सीखना है, ये बच्चा भी ये सीख रहा है। मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और सभी जान जाते हैं एक दिन कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे स्टैंड रहना है। तो बॉल थी तो बॉल, मेटाफर था बॉल भी, एक सिंबलिज्म यूज किया है जॉन बेरीमन ने। ब्यूटीफुल पोएम। उम्मीद है कि आपने बहुत एंजॉय की होगी। अब एक बार अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर जाना। और अब देख लेते हैं वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस पोम में से। फर्स्ट वन देखिए, हम चल लेते हैं पहले थिंकिंग अबाउट द पोम में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपकी बुक से, ले लेते हैं। वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैंने कहा ना, मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन ऑफ दिस पोम। वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल। उसने उसको निकाल के एक डाइम क्यों नहीं दे दिया, पैसा क्यों नहीं दे दिया, तो रो मत यार, उदास मत हो, तू ये और ले लियो। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, ही इज ग्रीफ स्टिकन। द पोइट डज नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड हियर।
नहीं, उसको वो सूद करना नहीं चाहता. He does not want to soothe him here. He thinks it to be proper to let the child understand the harsh reality of life and put up with the situation his own. उसे इन परिस्थितियों में खुद उठना है, so that he can prepare himself for future life on how to bear losses. आगे भी तो होने हैं, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा. Poet wants that child should develop a sense of responsibility and maturity. That is why he does not intrude on him. वो उसको पैसे भी ऑफर नहीं करता है. तो ये आंसर आप इसके क्वेश्चन में लिख सकते हैं. सेकंड देखिए, एक और लाइन आई है पोम में, स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? क्या आपको लगता है इन लाइन से कि वही बॉल उसको चाहिए? क्या वो उससे अटैच्ड है, काफ़ी लंबे समय से उसके साथ है? इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? तो आंसर लिखिए इसका यस, हमें बिल्कुल ये लगता है. द बॉय हैड दैट बॉल विद हिम सिंस लॉन्ग, लंबे समय से थी, वो उससे खेलता था. लेकिन आज क्या हुआ, स्किप करते हुए अचानक वो रोल डाउन इनटू द वाटर. ही हैड मेमोरीज कनेक्टेड टू दैट बॉल विच इज लॉस्ट नाउ. ही इज सैड ड्यू टू this reason. The ball was so dear to him that he feels gloomy over its loss. It proves that उसके पास वो लंबे समय से थी. हाँ थी. ये देखिए आप. थर्ड देखिए, एक और लाइन आई थी ब्यूटीफुल, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. व्हाट डज दिस मीन? पोजेशंस मीन्स हियर मटेरियलिस्टिक थिंग्स. यहाँ पर तो बॉय की तो वो बॉल थी ना, और ये सब हमारा है, ये गाड़ी, बंगलो. वी आर possessive about to such an extent that we don't want to share these things with anyone. We are attached with them emotionally. We have a lust to collect materialistic things too much. This world is full of this possessiveness. यहाँ इसकी बात वो करता है. ठीक है, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं. फोर्थ में चलते हैं. Do you think the child has lost anything earlier? He is sensing his first responsibility. वो लाइन आ गया इसका आंसर. Pick out the words that suggest the answer. Words pick किए. Line 11 of the poem. Now he senses his first responsibility. This line says, we can say that he is in grief over the loss. He feels trembling and shaken over the first time loss of his belonging, which has rendered him shocked for the first time. So it was first time, and the boy had not lost anything in the past, we can say. This you can write in its answer. Fifth question देखिए, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. Yes, loss of the ball is giving him lesson of how to take care of belongings. पहला lesson. The boy is learning the nature of loss, epistemology of loss, how one feels about after losing his dear things. He is learning how to face losses and how to cope up with. These are the lessons. This small incident is imparting training to him, which is significant in life. He is learning that without losing heart, he should stand up and go ahead in life. Yes, it is not end of the world. He is learning, right? Money is external. देखिए आप कितने अच्छे जो हैं इसमें sentences डाले हैं. What does the poet mean by this expression? Money is external. The poet makes the boy understand about his responsibility at the loss of material. वो उसको पैसे नहीं देता है कि जा भैया दुखी मत हो. Money is external as it cannot buy memories attached with that ball. Just it can replace the things. Money can replace it. Money cannot buy everything that we loved. Those things are that really matter. वही चीज़ें हमें जो हैं याद आती हैं. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं इसके आंसर में. नेक्स्ट देखिए, what does John Berryman want to convey through this poem? Beautiful poem. That the importance of loss
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। लॉस पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेस है ना, अचीव तो कहा जाता है। अरे लॉस पर क्या करना है भैया, वो जो लटक जाते हैं पंखों से, इसीलिए इसकी ट्रेनिंग तो होती नहीं। वी ऑल शुड लर्न आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू कॉप अप विद द लॉस। थीम ऑफ द पोएम की बात कर लेते हैं लास्टली। लॉस इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। थीम देखिए आप कि चाइल्डहुड इज द टाइम व्हेन वन शुड बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग ऑन हाउ टू बियर लॉस राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। पहला टॉय जब टूटा, पहली बॉल जब गुम हुई, इसी तरह हमारा भी विद द लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स वी लर्न टू लिव विदाउट देम ग्रेजुअली। धीरे धीरे कैसे बाहर आना है उससे, है ना। वन शुड नॉट फील सैड एंड ग्लूमी। द पोएट सेज दैट वी कैन बाई अनदर बाई पेइंग मनी फॉर इट, बट ही डज नॉट वांट टू सूद द बॉय हियर। लेकिन वो लड़के को लेसन देना चाहता है, पैसे वो दे सकता था, दूसरी बॉल आ जाएगी। ही वॉन्ट्स दैट बॉय मस्ट लर्न द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, harsh reality of life, that anyone can suffer loss of things dear to him. One should not bring life to a halt and continue to achieve more to lose again perhaps. और अचीव करो फिर वो भी गुम जाएगा, और अचीव करो, ये चलता रहे। यस, तो ये है एक्सरसाइज, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी मैं आपको एक क्विज़ देने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं 12 क्वेश्चंस का ये क्विज़ है। आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, हु रोट द पोम दी बॉल पोम। लिखिए चारों में से कौन सा सही है। 1 2 3 4 ऑप्शनें दी हैं। द वर्ड बॉल्स इन द पोम सिग्निफाइज व्हाट, बताइए इन चारों में से। थर्ड में देखिए, नेम द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। लिटरेरी डिवाइसेस हमने डिस्कस किया है, तो बताइए कौन सा है इसके अंदर। ब साउंड अगेन आती है तो क्या कहलाता है। तो ये बताइए आप 12 क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। मैं जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में, राइट है या रॉन्ग है। ठीक है चिल्ड्रन, बने रहिए मेरे साथ। मैं आने वाला हूँ जल्द ही नेक्स्ट लेसन में। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को भी, जहाँ पर आप प्रिंटेड मटेरियल भी देख सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।